Okay, so this lecture is going to get recorded now, and I'm gonna enter in the, yeah, okay, it's fine. All right, it's let's start the show now. Okay, fine, people. So this is where we end up last time. Just a moment. What the hell is going on? Okay, thank you. Yeah. This is where we end last time, that what is malting, basically exactly the same like beer, जहां पे क्या हो रहा है कि बार्ले को हम पहले पानी डाल के सोक कर रहे हैं. वी हैव सीन दैट वीडियो, जिस वीडियो में ये था कि हाउ अ बार्ले हैज बीन malted. Now remember one thing, that if we always say that, sir, you are saying malting, so does it going to apply the same thing in case of your corn, rye and other thing? Who can say? So if I tell you that, okay, there is a Scotch whiskey, so malting is there. So uh, if if I'm from, I want to make a whiskey from rye or corn, do you think this malting part will come? Anybody? No, sir. Definitely. Who is it? No, sir. Really. Who is this person? Rohit, right? Yes, sir. Yes, absolutely right, Rohit. It's a beautiful answer. Because the fact is that only the Rohit has used his common sense. The common sense says that the malting will only happen in case of a barley. If there is a corn and rye, I just need to put this corn inside the mash tun, where the put some hot water. It will vigorously churn it, and the sugar जो starch form में corn and rye के अंदर है, it will just come out. Exactly the simple thing. Once this thing happened, then fermentation, we learn about wort and then wash. After that, there is a distillation process. Now, 3 distillations are allowed. More you distill a whiskey, more the alcoholic strength will rise. So basically what is happening, the water is draining away, and what is remaining behind is nothing but a pure spirit. Every time you do this thing, the alcoholic strength will increase to 100 percentage. I mean, like 100. I mean, like there will be no water, just an alcohol, Okay. Now, suppose if I have got 100 percentage of alcohol in a liquid, then how do I reduce the alcohol to 70? Anybody has an idea? Sir, add some water. Who is it? Rohit again. Yes, sir. Okay, fantastic. Yes, that's right answer, Rohit. Just add the water. Simple thing. मतलब कहने का मतलब है कि you put a whiskey from a market, you buy a whiskey from a market and put it on a glass. After drinking, अरे यार ये बहुत कड़वा है. Okay, तो हम क्या करते हैं? We add something called Sprite, vodka. Sorry, we add Sprite, we add Coke, we add water. What all this? These are known as a chaser, or it will this thing. But yes, remember one thing. फर्क यही होता है कि वो जो पानी हम स्पिरिट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ऐड करते हैं, दोज आर नोन एज डिस्टिल्ड वाटर. दोज आर नोन एज डिस्टिल्ड वाटर. ठीक है, याद रखना, डिस्टिल्ड वाटर को यूज किया जाता है. मतलब डिस्टिल्ड स्पिरिट के साथ डिस्टिल्ड वाटर, लाइक बोथ आर सेम थिंग. ओके, उसके बाद विस्की की एजिंग होती है. ओके, मिनिमम स्कॉच विस्की है तो 3 साल, आयरिश विस्की है तो 5 साल, तो ऐसे करके हम आगे जाएंगे. हमने लास्ट टाइम स्कॉच विस्की के बारे में भी देखा, एक क्विज भी देखा, एंड देन वी हैव लर्न दैट देयर आर सिंगल मॉल्ट, वैटेड मॉल्ट, ब्लेंडेड विस्की एंड सिंगल गेट विस्की. अगर हम स्कॉटलैंड कहते हैं तो ये दो ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंगल मॉल्ट एंड ब्लेंडेड. सिंगल मॉल्ट में क्या होता है? इट्स कमिंग फ्रॉम वन सिंगल डिस्टिलरी, एक ही डिस्टिलरी से आ रहा है. और ब्लेंडेड स्कॉच विस्की का मतलब है कि, मतलब सीधी बात है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने वो एग्जांपल देखा था, रोहित गुप्ता के पास एक डिस्टिलरी है भोपाल में, और शिवांगी के पास एक डिस्टिलरी है अपना सोलन में. तो शिवांगी ने कहा रोहित को, अरे रोहित कैसा है, चल हम दोनों मिक्स अपने विस्की को ना ब्लेंड करते, मिक्स करते हैं, एंड देन वी क्रिएट अ ब्लेंडेड विस्की. Now, remember one thing, that when you blend the Scotch whiskey, remember one thing, one has to come from barley and other one has to come from any kind of grains that you have. It can be wheat, corn, rye, anything. Then it will be considered as a blended whiskey. That's why the world famous whiskeys are
Johnny Walker, Ballantyne, Divar, and Chivas Regal, JNB Rare. I mean, like Chivas Regal and Johnny Walker, you have seen in every hotels and everything. Okay. I mean, the India is the largest consumer of the whiskey also. Okay, right. These are some images of some brands. Now, aging Scotch whiskey, age for, I mean, like aged as sherry casks were blunt. Sherry is a fortified wine. Okay. Minimum Scotch whiskey should be aged for 3 years. But yes, there are some whiskey can be aged for 50 years, 10 years, 15 years तक भी हो सकता है, depending on the quality and policy of that thing. ठीक है. अब हम आ जाएंगे सबसे पहले जिसका नाम है Irish whiskey. So leave the Scotland and let's go to Dublin. Where is Dublin? People, where is Dublin? सब सो गए क्या? कैमरा ऑन कर ऑफ करके. No idea, sir. No idea where is Dublin? Yes, sir. Dublin is the capital of Ireland. ठीक है, right? Okay. So Dublin is the capital of Ireland. So Ireland में हम आ चुके हैं अभी. अब हम Irish whiskey के बारे में जानेंगे. Irish whiskey is a whiskey. It's very interestingly made from malted and unmalted barley. एकदम सीधी भाषा में इसको समझ लो कि a difference between malted barley and unmalted barley. क्या difference है? Difference बस यही है कि अगर आपने बार्ले को पानी में सोक किया, स्प्रिंकल किया, तो वहां से स्प्राउट निकल के आएंगे. यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो. यू कैन टेक ए लुक, द स्प्राउट्स आर कमिंग आउट. whereas in case of unmalted barley you need not to soak anything. वो ऐसे ही है, वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा. Okay, so basically there are two parts. Either it can be malted or it can be unmalted also, right? And in roasting of the grains is done by anthracite coal, whereas in case of a Scotch whiskey, the roasting of the barley is done by what? Anybody remember? What is that thing is utilized for this roasting of barley? There was some billions of years back, the decomposition of animals and everything. What do you call that thing? People, this is all your MCQ question which will going to come in the examination. So now start targeting these areas. Okay, that is why I always put a red mark on everything. Those are known as a peat rick. Those are known as a peat rick. So peat rick. Okay, so peat rick is the one which is utilized for the roasting of barley in case of a Scotch. In case of a Irish whiskey, it is known as an anthracite coal. आयरिश विस्की इज ट्रिपल डिस्टिल, मतलब एक आयरिश विस्की को हम एक आयरिश विस्की को हम 3 बार डिस्टिल करते हैं. ओके, बट इट इज डन इन अ पॉट स्टिल. बट इन द मॉडर्न डेज में आज देखा गया है कि ये पेटेंट स्टिल में भी हो रहा है आजकल. बट यस, मॉडर्न की बात में है. पहले अगर देखा जाए कि आयरिश विस्की का डिस्टिलेशन किस में होता है, एग्जाम में आता है, तो सीधा आप बोल देना कि पॉट स्टिल में होता है. आयरिश विस्की को आपको मिनिमम 5 साल तक एज करना होगा. एंड ब्लेंडिंग इन आयरिश विस्की स्लाइटली प्रोहिबिटेड, बट सिंगल डिस्टिलरी के अंदर एक सिंगल, मतलब ऐसा कहा गया है, जैसे स्कॉच विस्की के केस में हम लोगों ने देखा था कि शिवांगी के पास एक डिस्टिलरी है और रोहित के पास एक डिस्टिलरी है. एक सोलन वैली में है हिमाचल में, एंड द अदर वन इज इन जो रोहित के पास है वो भोपाल में है. उन्होंने बोला चलो मिक्स करते हैं. लेकिन आयरलैंड में ये डिफरेंट डिस्टिलरी का जो ब्लेंडिंग है ये बैन है. हाउएवर दी सिंगल डिस्टिलरी, मतलब एक लौता डिस्टिलरी. अब सोलन वैली में जो शिवांगी का जो डिस्टिलरी है, अगर शिवांगी ने सोचा कि ना चलो ठीक है, मैं बार्ले और ग्रेन का मिक्सचर करूंगा, ओके, लेकिन मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं होगा, आई विल डू इट बाय माई सेल्फ. तो वो ग्रेन मतलब व्हीट से विस्की मैन्युफैक्चर करेगा एंड देन बार्ले से मैन्युफैक्चर करेगा, एंड आफ्टर दैट शी विल मिक्स द एंटायर थिंग. So this is known as a malted and unmalted barley. I'm sorry, malted barley and grain whiskey. ठीक है, which is allowed in the single distillery. Single distillery अगर चाहे तो वो कर सकता है, नहीं तो वो नहीं करेंगे. ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ आयरिश विस्की. आयरिश विस्की में 2 टाइप होता है. एक होता है प्योर पॉट स्टिल विस्की. इट इज अ मिक्सचर ऑफ malted and unmalted barley. हमने देख ही लिया है, जहां
जिस बार्ले के ऊपर हमने स्प्रिंकल किया पानी वहां से स्प्राउट्स निकला, दैट इज मॉल्टेड। और अनमाल्ट मॉल्टेड में क्या होता है, देयर इज नो स्प्राउट्स। अ सिंगल मॉल्ट विस्की मतलब है 100% मेड फ्रॉम पार्ले। ओके, ये कुछ ब्रांड है इसमें, आप बस नेक्स्ट पीपीटी में इसको देख लेना। देखिए ये सारे कुछ ब्लेंडेड विस्कीज है। जेमसन, अ वेरी वेरी फेमस आयरिश विस्की ब्रांड। याद रखना, देयर इज एक्चुअली अ coffee based drink known as a Irish whiskey. Irish whiskey something which is made from espresso coffee. Okay, Irish coffee is made from espresso, 30 ml of, sorry, yeah, 30 ml of espresso, 10 ml of Jameson and then whipped cream. Okay, उसके साथ एक बिस्कॉटी ऐड किया जाता है। सो ये जेमसन एक ऐसा विस्की है जो ट्रेडिशनली आयरिश विस्की के केस में यूज किया जाता है। इसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड बशमिल, तुलामोर, पैडी, मिलार्स एंड किलबैगन। दीज आर not widely available in this thing, but yes, Bushmill, Jameson and Tullamore, you can find it in any kind of hotel. Then once again, Redbreast and Dunwell is another pure pot still example. But otherwise, अगर Irish whiskey है तो याद रखना Bushmill, Tullamore and Jameson. These are the famous Irish whiskey brand. But yes, in campus interview if somebody asks you और ट्रेनिंग का इंटरव्यू चल रहा है, आप लोग किसी ने पूछ लिया कि 5 आयरिश विस्की का नाम बताइए, तो प्लीज रिमेंबर एटलीस्ट 5 ब्रांड्स फ्रॉम ईच कंट्री। ठीक है, next we enter to our final phase of whiskey, which is known as an American whiskey. Very very interesting. America just changed the concept of whiskey. They are the modern whiskey manufacturer जिन्होंने whiskey की definition को ही बदल दिया और एक ऐसा whiskey मैन्युफैक्चर किया जो आज स्कॉच विस्की का से कंपटीशन कर भी रहा है और दे आर एक्चुअली बीटिंग देम। पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने कहा कि मैं कभी विस्की को पॉट स्टील में मैन्युफैक्चर करूंगा ही नहीं। सो दे हैव स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द एंटायर थिंग इन अ पेटेंट स्टील। देखिए, अमेरिकन विस्की इज मैच्योर्ड इन पेटेंट स्टील, आई एम सॉरी, डिस्टिल्ड इन पेटेंट स्टील। और अमेरिकन विस्की में सबसे जो हाई मात्रा में जो चीज रहता है वो है राई एंड कॉर्न। इसके अलावा ओट्स एंड बाल्डे को वो यूज करते हैं, लेकिन राई एंड कॉर्न की सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अगर आप देखना चाहोगे, यू कैन चेक ए लुक, दिस इज हाउ द अमेरिकन विस्की इज द कैपिटल ऑफ अमेरिकन विस्की इज नोन एज द केंटकी। व्हाट इज अनदर थिंग इज केंटकी फेमस फॉर? केंटकी अमेरिकन विस्की को छोड़ के किस चीज के लिए फेमस है पीपल? सब सो गए क्या? Sir, don't know. Think everybody knows it. Rohit knows it, Shivangi knows it, I know. Shekhar also knows it. Come on, yaar. It's widely available in anywhere. Delhi, Calcutta, Gurgaon, Gwalior, सब जगह मिलता है वो। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, वो चिकन बेचता है, वो चिकन। Also KFC. Yes, KFC, that's right. Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken, KFC. तो Kentucky is a whiskey capital of India, a whiskey capital of USA, जहां से दुनिया की सबसे फेमस विस्की आता है जिसका नाम है बर्बन विस्की। अब हम उसके बारे में जानेंगे। देखिए, अमेरिका में क्या क्या प्रोडक्ट यूज किया जाता है। ये है आपके अपना राई, ओके, ये है आपके कॉर्न, दिस आर द यूज, दे एक्चुअली यूज दिस थिंग। और उससे भी जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो है ये शार्ड ओक बैरल। ये बार बार हम लोग बोल रहे हैं शार्ड ओक बैरल। होता क्या है शार्ड ओक बैरल? देखिए क्या होता है शार्ड ओक बैरल। यहां पे आप देख सकते हैं कि ओक कास्क, इस ओक बैरल्स को जिसके अंदर विस्की मैच्योर किया जाता है, उसके अंदर दे एक्चुअली पुट अ बर्निंग फायर डाल के, आग डाल के उसको काला किया जाता है, टोटली कंप्लीटली बर्न। और जलाने के बाद वो जला हुआ, मतलब एवरीथिंग विल बी इनसाइड द ओक कास्ट, नॉट आउटसाइड। उसी जला हुआ जो अपना कास्क है, उसी कास्क के अंदर आफ्टर दैट दे विल ऐड द विस्की।
and that is why American whiskey are very very smoky in nature. Okay, there are sugar. Now the सवाल ये है कि why this cask are burned. कल अगर ये क्या कहा गया कि क्यों ऐसा किया जाता है, आंसर यहाँ पे है. देखिए ओक का जो ट्री है उसके अंदर क्या होता है, ओक कास्ट जो वुड होता है उसके अंदर होता है शुगर एंड वैनिला. अब आप जब उसको बर्न करते हो तो क्या होता है, जो शुगर है वो एक्चुअली कैरामलाइज्ड हो जाता है, और कैरामलाइज्ड होके वो लिक्विड फॉर्म में जस्ट लाइक अ सैप काइंड ऑफ सेमी लिक्विड फॉर्म में विस्की के साथ मिक्स हो जाता है. सो you'll get a smoky flavor and at the same time it will also feel like a sweeter. जो आपको यही यही क्वालिटी है, यही क्वालिटी है कि अमेरिकन विस्की स्कॉच विस्की से इतना डिफरेंट है. स्कॉच विस्की इज वंस अगेन फेमस इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इज स्मोकी नेचर, बिकॉज वो पीट रिक से उसको रोस्ट किया जा रहा है. लेकिन अमेरिका ने क्या किया, उसने भी अपना विस्की को स्मोकी कर दिया. उसके साथ उन्होंने कहा चलो ठीक है, स्मोकी के साथ हम लोग ना वैनिला और थोड़ा सा जो शुगर है कैरामलाइज फॉर्म में ऐड करते हैं. How does it feel? It will just feel amazing. Just like you can just think that समझ लो कि रसगुल्ला के ऊपर या फिर गुलाब जामुन के ऊपर हम अगर शुगर सिरप नहीं डालते तो कैसा लगता. अगर हम गुलाब जामुन करने के बाद, गुलाब जामुन है क्या एक्चुअली, इट्स जस्ट लाइक अ बर्न्ड खोआ. ठीक है, खोआ खीर को अगर हम बर्न करेंगे तो दैट विल टर्न इनटू गुलाब जामुन. उसी जामुन के ऊपर अगर आप जलता हुआ शुगर सिरप डाल दोगे थोड़ा सा थिक करके, हाउ डज इट टेस्ट? जस्ट टेस्ट अमेजिंग. But this is the fact behind this thing that the American whiskey is being charred and burned. Also अमेरिका में शावर मैश प्रोसेस को यूज किया जाता है. ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. तो हमने ये जाना कि these are the factors which are used in the American whiskey. अब अमेरिकन whiskey का भी क्लासिफिकेशन है, ये आपको अभी जानना है. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. हम ये पढ़ रहे थे एज इन जनरल. अब इसके टाइप्स आता है. देखिए अमेरिकन विस्की के टाइप्स क्या क्या है. सबसे पहले जो आता है, जो वर्ल्ड फेमस है, वो है बर्बन विस्की, जिसका घर है केंटाकी. केंटाकी एक छोटा सा जगह है, जस्ट लाइक अ काउंटी काइंड ऑफ थिंग. मतलब बर्बन इज अ स्मॉल काउंटी इन अ केंटाकी, न्यू ऑरलैंड्स. सो न्यू ऑरलैंड्स इज आवर स्टेट. जैसे कि समझ लो एमपी एक स्टेट है, न्यू ऑरलैंड्स इज अ स्टेट. उसी स्टेट के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बर्बन. तो बर्बन अगर हमारा लेट्स टेक एन एग्जांपल, सॉरी, उसके अंदर एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है हमारा, समझ लो, ग्वालियर. ग्वालियर में महाराजपुरा एक छोटा सा जगह है जहां पे सारे अमेरिकन के जो बर्बन विस्की है वो मैच्योर होता है. सो दिस इज आवर फेमस बर्बन विस्की ऑन द on the page. You can take a look. It's known as a Jim Beam. Okay. Now, bourbon whiskey है क्या? Bourbon whiskey is basically a mixture of grains. But yes, they have said it has to be 51% corn. आपको जो यूज करना यूज कर लो. कॉर्न जो है, भुट्टा जो है, वो 51% होनी चाहिए. रेस्ट ऑल कैन बी बार्ले, ओट्स, राई, जो आपको यूज करना कर लो. ठीक है. इसलिए समटाइम क्या होता है, फ्लेवर और पॉलिसीज के कारण लोग 70% कॉर्न भी यूज करते हैं. लेकिन 51% से अगर आप नीचे जाओगे तो उसको बर्बन विस्की आप नहीं कह सकते हो. यू हैव टू बी मोर देन 51%. अब बर्बन विस्की में एक इंटरेस्टिंग चीज होता है, उसका नाम है शावर मैश प्रोसेस. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. शावर मैश प्रोसेस सुन के ही आपको लग रहा होगा कि जो सरा हुआ मैश है, मतलब है कि जो लास्ट जब हम लोगों का जब फर्मेंटेशन हुआ था उस बैच में कुछ बच गया होगा रेसिड्यू सामान. उस रेसिड्यू सामान को जब हम न्यू बैच के साथ मिक्स करते हैं, ऑब्वियसली अनफर्मेंटेड, फर्मेंटेड हो जाएगा तो मुश्किल होगा. अनफर्मेंटेड बैच मतलब जब भी समझ लो विस्की का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है अमेरिका में, व्हाट दे डू बेसिकली, दे कीप सम ऑफ द अनफर्मेंटेड कॉर्न मैश बेसिकली. If I want to, if you want me to repeat again, I would like to say what is mashing. Mashing is nothing but extracting the sugar from the starch of a ingredient. So if I got a corn with myself,
I have to extract the sugar from there inside the starch. Now, if there is a starch, people, you have to understand that it has to mix with a hot water. Now, once you get a mix with the hot water, it just vigorously churn it, and once it churn it properly, then the sugar will come out and mix in the liquid. This is unfermented mash. If you add yeast to it, then it will turn into whiskey. तो जब फर्मेंटेशन शुरू होने से पहले मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, थोड़ा सा 10-12 लीटर के आसपास उठा के साइड में रख देते हैं कि भाई जब हम नेक्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर करेंगे तो इसी को हम यूज करेंगे. कहते हैं ना कि बासी पनीर बटर मसाला फ्रेश पनीर बटर मसाले से बहुत ही अच्छा होता है. सिंपल थिंग है कि आप एक मतलब लाइक चिकन करी बनाने के बाद या बिरयानी जो भी है बनने के बाद उसको फ्रिज के अंदर रख दो, उसको रात को गर्म करके खाओ, शाम को मतलब लाइक लंच के टाइम पे उसको कुक करने के बाद शाम को उसको ट्राई करो, देखो कैसा लगेगा. इट विल जस्ट लुक अमेजिंग. ओके, so that's give a very distinct flavor and maintain the pH level. Okay, that's the acidic level actually. And bourbon whiskey are aged for 6 years. So people, yaad rakhna, people, anybody say that what is bourbon whiskey? Bourbon whiskey is something that is made in Kentucky. Kentucky is a place where the bourbon whiskey comes from. Now, if you want to make a bourbon whiskey, remember one thing, your 51% has to be corn. Your 51% has to be corn. Below 51%, it will never be considered as a bourbon whiskey. Now, yes, rest of the one you can use proportionately like 15% corn to 25% rye. That's completely your call. Nobody will say anything. Now, there are some brands for that. One is known as a Jim Beam, one is Four Roses, Old Crown, Old Grandad, Kentucky Turban. All these things are the famous brand of the American whiskey. I've already shared the notes on the WhatsApp group. Please take a look at from there. Okay. So lots of MCQ questions are here. What is sour mash process? What are the brands of bourbon whiskey? And what is the process of manufacturing or the policies? Or देखो सबके मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वो एक ही है, मैशिंग, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन, एजिंग, बॉटलिंग एंड एवरीथिंग. बट चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, बार्ले था इसलिए मॉल्टिंग था, अब बार्ले नहीं है तो मॉल्टिंग नहीं है. Okay. Finally, we enter to the another part of the American whiskey, or another like type of American whiskey, which is known as a Tennessee. Now, Tennessee is once again a place in America. You can take a look. This is how the Tennessee welcoming you. And Tennessee whiskey is something where it's very close to the Tennessee River. There is a river in Tennessee, in southeastern America, where this thing happened. So almost everything is same, but the Tennessee whiskey is also made from corn and everything is there. But there are only one single difference, one single difference that makes the everything different. जब आप इसको फिल्टरेशन करते हैं तो उसको मैपल चारकोल से करते हैं. ठीक है, इस चीज को बस ध्यान में रखना, मैपल चारकोल से इसको हम टेनेसी whiskey को filtration करते. You can check a look. This is a brand of Tennessee whiskey, a famous whiskey which is known as Jack Daniel. And then this is how the maple charcoal look like. Take a look at this. So basically what they do, when the whiskey is manufactured, whiskey is ready to go, then they put a chunni or a strainer. In that strainer they add this charcoals. Okay, now they put the whiskey on that chunni, which is full of this charcoal, and it will drain out. And when it is drain out, it's get filtered. Also, it add different kind of flavors also. Okay. Also, you need to keep in mind it has got some of the whiskey that has got an 80% I mean like corn. Okay, and minimum aging for this whiskey is 2 years. So once again, people take a look at this fact. Scotch whiskey are aged for 3 years. मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ. आयरिश विस्की एज फॉर मिनिमम 3 years, एंड टेनेसी विस्की इज मिनिमम, लाइक अमेरिकन विस्की इज मिनिमम एज फॉर 2 years. Now maximum is just how much you can do. ठीक है, right? Okay, so that's how it is. People just understand one thing. So अमेरिका में आपके दो टाइप के विस्की होता है. One is a Tennessee whiskey, one is a
बर्बन विस्की, ये दोनों विस्की दुनिया के वन ऑफ द फेमस विस्कीज में आता है। ओके, तो ये है आपके अमेरिकन विस्की की कहानी। इसके अलावा देयर आर आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ विस्की इन अमेरिका, लाइक कॉर्न whiskey. You can take a look. It's known as the Georgia Moon or Mellocorn. Okay. Then there is a rye whiskey. Rye से बनने वाले whiskey like Copper Fox and Wild Turkey. So people once again sometime इंटरव्यू में टफ कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए आपसे शायद ये सवाल पूछा जाएगा कि कॉपर फॉक्स इज व्हाट काइंड ऑफ विस्की, सो जस्ट केयरफुल, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। आई नो दैट यू विल स्टडी अबाउट टेनेसी एंड बर्बन, बट ऑल्सो डू नॉट इग्नोर दिस थिंग ऑल्सो, might create a big problem. Okay, right, lastly we'll enter into the Canadian whiskey. This is the last one. So Canadian whiskey is once again known as a rye whiskey. यहाँ पे only rye तो rye, मतलब 80% उसका rye होना ही चाहिए। इसके अलावा वही वापस फिर से है कि अगर वो चाहे तो 3% बाकी 10% 5% बार्ले और कॉर्न भी यूज करते हैं, बट rye तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, it is aged for 3 years and it is not it's done in a oak barrels but not charred. Famous brand like Seagrams, आपने like जो अपना जो क्या बोलते हैं, पहले जो टीवी में एड्स आता था, Seagrams म्यूजिक सीडीज एंड कैसेट्स। ओके, सो ये Seagram वही Seagram है बेसिकली। आप एक्चुअली हमारा देश अभी उस लेवल में गया नहीं है जहां हम किसी अल्कोहल की विज्ञापन ये कर सके, तो हम इसलिए क्या करते हैं कि वी आर नॉट अलाउड टू शो एनी अल्कोहल एड। ठीक है, हम सॉफ्ट ड्रिंक्स का एड दिखा सकते हैं लेकिन अल्कोहल का एड नहीं दिखा सकते, इसलिए हम Seagrams को ऐसे बेचते हैं म्यूजिक सीरीज एंड कैसेट्स के नाम से। ओके, तो कैनेडियन विस्की इज आल्सो नोन एज राई विस्की, जहां पे 80% राइज होता है, ये ओक बैरल में एज होता है, बट इज नेवर बीन शार्ड। ओके, इट्स नॉट चार्ड, हाँ, इट्स कॉल्ड शार्ड, CHAR, it's not charred, it's called as a charred oak barrel. ठीक है, right? So this is your Canadian whiskey. इसके अलावा आज तो चलो इंडियन विस्की भी है, जापानीज विस्की है, संतूरी इज अ फेमस जापानीज विस्की ब्रांड, लेकिन एक्चुअली दीज आर योर इमर्जिंग विस्की ब्रांड्स आजकल। तो मतलब समझ लो लाइक सियाग्राम्स हो गया, बशमिल हो गया, ये सारे तो नाम है, मतलब दीज आर द नेम्स, ग्रेट नेम्स। आज जिस रेट में अमृत डिस्टिलरी इंडिया का बिजनेस कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इट्स जस्ट लाइक अमेजिंग, मतलब इट्स रियली अमेजिंग। ओके, इवन लेट मी टेल यू समथिंग दैट लास्ट ईयर हमारे जितने सारे व्हीट एमपी में वेस्टेज हुआ था, उसको कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप्स के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है आईपीओ शेयर मार्केट में, सो दैट द wastage of whiskeys, not the whiskey like this barley should not get wasted, it should be converted into some spirit, so that उससे कुछ employment हो, उससे कुछ revenue generation हो। okay, right? so ये थोड़ा सा हटके चीज है, मतलब मुझे पता नहीं शायद बोलना चाहिए या नहीं, बट सिंस आई सपोज टू गिव यू सम नॉलेज। देखो, हमेशा एक चीज याद रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको होटल मैनेजमेंट करने के बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग या फिर एज एन वेटर और एज एन कॉमी 1 2 3 4 और एज अ GRA काम करना है। यू कैन ओपन अ न्यू स्टार्टअप्स। ओके, okay, you can open your own distillery, you can open your I mean like चलो सब लोग रेस्टोरेंट और सब लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम खोल रहा है, सब लोग खोल रहा है, there is nothing new to it, you know, this is the fact। लास्ट ईयर हम लोगों ने 1500 मेट्रिक टन व्हीट लॉस्ट किया था, which मतलब like wasted। so if this 1500 metric ton wheat was being utilized, we will also increase, मतलब like अगर उसको हम यूज कर सकते थे तो then we can also cross the Russia is the largest vodka producer of the world, आज हम उसको सरप्लस ये कर सकते थे। ओके, तो चलिए बात की बात है, वो तो देख लेंगे, बट यस यू कैन स्टिल डू इट, आप अपना स्टार्टअप भी खोल सकते हो। ओके, राइट, तो ये हो गया कैनेडियन विस्की। चलो वापस आते हैं हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चार्ट बिल्कुल याद रखना, इसको मत भूलना। स्कॉच विस्की, आयरिश विस्की और अमेरिकन विस्की में क्या फर्क है, ठीक है? आई विल गोइंग टू सेंड यू दिस पीपीटी, प्लीज टेक ए लुक एंड ट्राई टू गेन मोर knowledge from it. Okay, right?
So 3 years, 5 years and 6 years is the minimum aging criteria for all. और Scotch, Irish and USA का जो whiskies है, these are the famous in the world. Okay, right? So this is the fact about the whiskey. So now we are done with the whiskey. Tomorrow we're going to hit, that is Sunday. कल Sunday है, लेकिन कल फिर भी क्लास होगा 11 बजे. कल हम वोडका और जिन दोनों एक साथ एक ही दिन में खत्म कर देंगे. Because it's very easy. Both are same. इसमें कोई फर्क नहीं है. Okay? So whiskey आपका हो गया. Yeah, please, please, please. सर कल क्लास 11 बजे 10 बजे है. Okay, sorry, 11 o'clock, right? So 11 o'clock we'll meet and we will just take a look at the entire thing, and उसके अलावा हम वोडका और जिन जो है वो एक दिन में खत्म कर देंगे. Okay, right? Fine. Now people, please, anyone have got a question they can answer? Oh my God! Finally, lots of people have joined. No. Okay, great. Yeah, please. सर कैनेडियन विस्की को हम सिंगल मॉल्ट विस्की भी तो